Started, gentlemen. What we talked yesterday, mostly it was about this slide, may I say, or the whiteboard, where I talked about the importance of communication. I talked about the importance of communication networks or communication systems. I talked about what is signal. I talked about what is a system. I talked about what is communication system. And probably I gave you an example that, for examples, I am in Peshawar, I am the source, I generate a signal. So it means I am the source of this signal. I put this signal in my transmitter, and then the transmitter processes this signal into an appropriate form so that it may be transmitted through a transmission system, and finally it is received to in different parts of the world. So in different parts of the province, for example, like one of the students said that she belongs to Chitral, so I took the example out that I'm in Peshawar, she's in Chitral, so the receiver is in Chitral. So this transmission, the job of this transmission system or this network, I may say, this network is to take the signal from one part of the world to another part of the world. So this is the job of our this course, is this communication system. And I told you yesterday as well that what is a signal? Signal is the electromagnetic representation of your information. Like it may be my voice, it may be whatever is on my screen, it may be my video. So all of them are the signals. So these signals maybe these signals may be the electromagnetic, means it may be represented by some voltage levels, or it may be represented by some optical intensity, depending upon the type of transmission system. And then it may go through air, it may go through the copper wires, it may go through the optical wires. These optical wires may be underground, these optical wires may be under the ground, under the sea, these optical wires may be under the rivers, and finally it reaches to the receiver, and then finally reaches to the destination. And this whole is called the, each of these is called the system. I gave an example yesterday as well, if I remember correctly, that if I input a signal of 2 millivolt as an input to this system, and I get an output of 10 millivolt, for example, I get an output of 10 millivolt. So what has been done? The amplitude of the signal has increased. The amplitude of the signal has increased from 2 millivolt to 10 millivolt. So the job of this system, I can say, is amplification. Similarly, if I input a 10 millivolt signal and I get a 1 millivolt signal here, so I can say that the job of this system is attenuation. Or I input a signal and I get a signal at a high frequency, so it might be a modulator. So I input a signal, a plain text, and I get a ciphertext. So this system is a encryptor. So we will be talking about all of these in this course. But if you have any question, ladies and gentlemen, I will be happy to respond. Ijaz Aslam, Muhammad Abbas, Madina Gul. Madina Gul is from which city? A very Peshawar. Peshawar, unique name, Madina. No question is the response from Ziadullah. So then if there is no question, so then Ijaz Aslam, Arij Gul, Umar Farooq, do you have any question from any ambiguity? Any? No, sir. Okay. No, sir. Nice. No, sir. Thank you. Thank you for the response. But do read whatever the slides you have. The books will be uploaded, inshallah, on your group. So download them, read them. Try to, if you have any query among any item, you may contact me and I will try to respond you. Okay. So gentlemen, I was talking about yesterday that Shannon said a very something about the figure which I have drawn as well, that the fundamental problem of communication system is that of reproducing at one point, reproduce, which means at a destination.
It means reproducing at a destination either exactly or approximately a message selected at another point. Like I gave an example, that other point is Peshawar, and where it need to be reproduced is Chitral. So I sent from Peshawar, received at Chitral. So this is the job of the communication system. Now this signal we want that it should be as exact as possible, but definitely some error, some noise is added to the signal. That's the reason we always get something which is approximate to the original sent signal. So this is something important. So what will be our learning objective of this chapter? First of all, gentlemen, as I shown you here, and I told you yesterday as well, that we have around 7.1 billion people. We have around 20 billion devices. And we expect that within a couple of years, it will become around 50 billion. Why? Because of the Internet of Things. Because of the Internet of Things, right? So if it is 20 billion, 50 billion, and every day around 100 billion emails are generated and read, and along with this email is a text messages, so it doesn't have large size, but as compared to this, the video, very huge. Like now what I am doing, I am putting a lot of traffic on my network. For example, if I show you that how much traffic I am putting on my network, so let's see. Here is the network. So you can see that around 100 kilobit per second I am putting on the approximately this one number. As you can see here, I am sending. So around 1 megabit per second I am putting on this channel. So this is something मुझसे भूल गया, लेकिन एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था मुझसे. May I have his name? He sent me an email yesterday. He's probably he's from section B. Mia Saad Amin. Yes. जी, तो मियां साद अमीन ने मुझसे क्वेश्चन ये किया कि सर आप इस कोर्स को प्रैक्टिकल बना दें. जेंटलमैन, ये कोर्स है ही प्रैक्टिकल. मतलब इसका मतलब बेसिकली आप इसकी प्रैक्टिकलिटी तो लैब में जाके तो ऑब्जर्व करेंगे, जहां पे आप राउटर्स को, स्विचेस को और आपके जो इंस्ट्रक्टर हैं आप उनको इस चीज पे लाएंगे कि जी हमें ये चीजें प्रैक्टिकली करके दिखाएं और करके बताएं और हमें भी करने की इजाजत दें. लेकिन है ये कोर्स जो है सारा का सारा प्रैक्टिकली इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि मैंने आपको वो चीजें बतानी है, बल्कि मैं कोशिश करूंगा कि सिमुलेशंस पे अगर हम एक जगह पे इकट्ठे नहीं हो सकते तो सिमुलेशन में आपको ये चीजें करके दिखाऊं कि अगर आपका ये आईपी एड्रेस है तो कैसे काम करता है, आपका मैक एड्रेस है तो कैसे काम करता है, आपका आर्क प्रोसेस है तो कैसे काम करता है, आपका डीएनएस है तो कैसे काम करता है, आपका डीएचसीपी है तो कैसे काम करता है, आपका गेटवे है तो कैसे काम करता है, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. तो ये सारी चीजें हमने पढ़नी है, लेकिन हर एक स्किल के पीछे कोई ना कोई थ्योरी जरूर होती है. जैसे वाईफाई एक टेक्नोलॉजी है, इथरनेट एक टेक्नोलॉजी है, लेकिन डेफिनेटली उसके पीछे कोई ना कोई थ्योरी होना मस्ट है. अगर हमें थ्योरी वो समझ नहीं आती तो फिर प्रैक्टिकली करने का मकसद ये होगा कि बिल्कुल एक लाइनमैन के तौर पे हम उस कोर्स को देख रहे हैं, हम उसको एक टेक्नीशियन के तौर पे एक कोर्स को देख रहे हैं. अगर हमने वाकई एक इंजीनियर के तौर पे देखना है तो वी नीड टू अंडरस्टैंड द थ्योरी बिहाइंड इट एज वेल. डू यू एग्री विद मी साद? Yes. साद अमीन. Yes, I got it. Thank you, sir. ठीक है, तो इसलिए मियां साद अमीन मेरी कोशिश होगी कि आपको थ्योरी भी उसकी समझाऊं और फिर हम उसको इम्प्लीमेंटेशन भी देखें कि ये कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है और किस तरह इस्तेमाल हो रहा है. और फिर हमारा जो मकसद होगा, जैसे देखें अभी मैं आपके सामने ले आया कि जैसे मैंने अभी यहाँ पे आपको दिखाया कि मैं सोर्स हूँ, तो मैं सोर्स होने की वजह से पेशावर में. मियां साद अमीन, फ्रॉम वेयर यू आर? Sawabi. सवाबी. तो आई मेक ऑल दिस चतराल को सवाबी आप समझ लें. तो विच मींस आई एम पुटिंग अराउंड 600 एंड अराउंड, जितना मैं मिसाल तो मैं मूवमेंट ज्यादा करूंगा उतने ये बिट्स इंक्रीज हो जाएंगे. तो आप देख सकते हैं कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा. सो आई एम एवरीवन इज पुटिंग दीज बिट्स ऑनटू द नेटवर्क. तो हम इस लिहाज से व्हाट इज बीन शोन हियर ऑन द ग्राफ, दिस इज द ट्रैफिक व्हिच आई एम जनरेटिंग, दिस इज द ट्रैफिक. तो तकरीबन आप देख सकते हैं मेरी सेंडिंग ज्यादा है, मेरी रिसीविंग कम है.
क्योंकि आप लोग कुछ नहीं भेज रहे, मैं ही सारा कुछ भेज रहा हूं। तो इस वजह से इसमें आपको ये भी नजर आ रहा है कि मैं कौन सी टेक्नोलॉजी पे ट्रांसमिट कर रहा हूं। तो वाईफाई यू ऑलरेडी नो अबाउट इट। कौन सा मैं इसमें टेक्नोलॉजी के अंदर फ्लेवर इस्तेमाल कर रहा हूँ 802.11n, मेरा आईपी एड्रेस क्या है, मेरा IPv6 एड्रेस क्या है। तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स। कितना बिट रेट मेरा इस वक्त मौजूद है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स इंशाल्लाह विल बी टॉकिंग, एंड दिस इज द प्रैक्टिकल कोर्स। Yes, thank you, sir. Okay, so we will be talking about in this chart topic the data communication traffic volume trend। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जहां पे 100 बिलियन, मिलियन नहीं बिलियन ईमेल्स हैं, कितने लोग ऑडियो वीडियो कर रहे हैं, कितने लोग यूट्यूब पे जा रहे हैं, स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, तो यू कैन एज्यूम ए ह्यूज ट्रैफिक। इस वजह से जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपकी आबादी बढ़ रही है तो आपने उनके लिए ज्यादा घर बनाने हैं, आपने उनके लिए ज्यादा रोड्स बनाने हैं, तो आपने उनके लिए चीजों को मैनेज करना है। इसी तरह में लेकिन कभी भी आपने सिविल इंजीनियर को नहीं देखा होगा कि वो खुश हो कि जी ज्यादा घर बने तो फायदा है या ज्यादा रोड्स उनके लिए मैस है। लेकिन नेटवर्क इंजीनियर्स, आप जैसे इंजीनियर जो हैं, वो इस पे खुश होते हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक को, इंटरनेट को इस्तेमाल करें और ज्यादा ट्रैफिक जनरेट करें। बल्कि उनको आपने देखा होगा कि पैकेजेस हम देते हैं कि जी पैकेजेस लो और कम उसमें, बल्कि कई टाइम तो हम फ्री में ट्रैफिक वो दे रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर आई वॉज टॉकिंग इन द मॉर्निंग टू वन ऑफ माई फ्रेंड इन US, or and he initially sent me a voice call and then I responded to him. So that shows how cheap it is. Make sense? So we'll be talking about the volume trends, traffic trends, कि कस्टम के ट्रेंड्स हैं, इंक्रीजिंग है, स्मूथ ट्रैफिक है, बस्टी ट्रैफिक है। अगर स्मूथ होती तो कैसा बिहेवियर होता, किस तरह हम उसके लिए प्लानिंग करते, किस तरह हम उसके लिए डिजाइन करते। अगर बस्टी है तो हमारे लिए क्या मसाइल है, प्रॉब्लम्स हैं, how we need to solve them, and then we will be summarizing the type of data networks. By type I means a very small network, for example a body area network. It may be a local area network in your home, for example, in your office, for example, in your university, for example, in your department, for example, in your lab, for example. So that is a local area network. Then it may be a network within the whole campus, maybe you call the campus area network. Then it may be a network in your city, you may call it a metropolitan area network. Then in network in your whole country or in your whole continent or in the whole world, wide area network. So these are the different types of networks. So we'll be talking about them, gentlemen, and then we will switch to the overall architecture of the internet. कि अगर हमने इंटरनेट को समझना है तो हमें उसका स्ट्रक्चर पता हो, आर्किटेक्चर पता हो, जो उसके कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में हमें पता हो। तो इट इज थ्योरी बट इट ऑल पॉइंट्स टू सम प्रैक्टिकल फीचर्स ऑफ द इंटरनेट। ओके, तो इस कोर्स का जो हमारा स्ट्रेस है वो 3 चीजों पे है। किन चीजों पे है? डेटा कम्युनिकेशन, जिनको मैंने येलो में शो किया है कि 3 एस्पेक्ट्स, डेटा कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग एंड प्रोटोकॉल्स। डेटा कम्युनिकेशन और आपको ये भी बताऊंगा जेंटलमैन कि ये सारा का सारा जो डेटा कम्युनिकेशन, नेटवर्क, प्रोटोकॉल्स, ये सारा का सारा एक बहुत ही मुश्किल काम है। क्यों मैं मुश्किल कहता हूं? क्यों इसलिए कहता हूं जेंटलमैन मुश्किल काम है, क्योंकि आपने देखे मिसाल के तौर पे अगर आप एक अपना घर में घर बना रहे, उसमें अगर आपने अपना किचन बनाया है, क्या आप ये कर सकते हैं कि किचन कल सोचे नहीं यार इस किचन की बजाय किसी किचन को मैं एज ए वॉशरूम यूज करता हूं, या इसी किचन को मैं एज ए ड्राइंग रूम इस्तेमाल करता हूं, या इसी किचन को मैं फॉर एग्जांपल मैं टीवी लाउंज के तौर पे इस्तेमाल करता हूं, या अपनी कार पार्किंग के तौर पे इस्तेमाल करता हूं? तो आपका जवाब होगा नो। आप किस तरह कार पोर्च को, आप किचन को कार पोर्च की तरह इस्तेमाल करेंगे? आप लाजमी तौर पर किचन का एक डिफरेंट डिजाइन है, कार पोर्च का एक डिफरेंट डिजाइन है, उसका एरिया डिफरेंट होना चाहिए, कार पोर्च बड़ी होनी चाहिए, घर के आप सामने होनी चाहिए, किचन शायद बैक पे होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, वहां पे शेल्फ्स होने चाहिए, वहां पे चूल्हे होने चाहिए, ब्ला ब्ला। इट्स नॉट पॉसिबल। इसी तरह जेंटलमैन, आपने या मिसाल के तौर पे अगर आपने यूनिवर्सिटी बनानी है, कॉलेज बनानी है, स्कूल बनानी है, हर एक का अपना एक डिजाइन है।
इज देयर एनी क्वेश्चन? तो No, लेकिन sir. जेंटलमैन, ओके, लेकिन जेंटलमैन, आपके जो नेटवर्क है, इस गरीब मस्कीन नेटवर्क को, इसलिए कहता हूं कि आप इस पे गरीब मस्कीन इसलिए कहता हूं कि आप इस पे हर किस्म की ट्रैफिक डालते हैं। क्या मेरी इस बात से आप एग्री करते हैं कि आप इसी नेटवर्क के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर अपनी वॉइस भी भेजते हैं, आप इसी के ऊपर अपना डेटा भी भेजते हैं, आप इसी के ऊपर अपना ऑडियो भी भेजते हैं, ऑडियो भी भेजते हैं, यानी कि मल्टीपल चीजें आप इसके ऊपर भेजते हैं, और ख्वाहिश आपकी ये है, मकसद आपका ये है कि ये सारी चीजें इसके ऊपर, मेरी मिसाल इसकी यही है, वॉइस का मतलब रिलेटेड भी किचन, किचन में आप कोशिश कर रहे हैं कि आपका डेटा भी जाए, यानी कि आपकी गाड़ी भी वहां खड़ी हो और आपका ड्राइंग रूम के तौर भी वो एक्ट करे। इट्स नॉट पॉसिबल, लेकिन वी डू ऑन द इंटरनेट, वी डू ऑन द इंटरनेट। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। Yes. मिसाल के तौर पे, इफ यू लुक एट नाउ, whether I'm sending you the text, yes, you are looking at the text on my screen. I'm sending my voice, you are listening to my voice, you are looking at my picture as well, my audio video as well. So I may write the main thing, video, जो कि मैंने मिस किया, वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट। अब इन सब की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे किचन की अपनी रिक्वायरमेंट्स है, ड्राइंग रूम की अपनी है, कार पोर्च की अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, इसी तरह इनकी भी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। मिसाल के तौर पे, इफ आई टेक अबाउट द डेटा, आपके डेटा में व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द डेटा, कि इट शुड, वट एवर यू सेंड, अगर वो लेट भी हो जाए थोड़ा सा, अगेन लव्स इज थोड़ा सा, ये नहीं कि आप डेटा सुबह भेजें और शाम को पहुंचे, नो। एक ईमेल आप सुबह भेजें और शाम को पहुंचे, नो, इतनी डिले हमें बर्दाश्त नहीं है। लेकिन कोई माइक्रो सेकंड की, मिली सेकंड की डिले हो तो चलो बर्दाश्त हो जाएगी, लेकिन लॉस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, लॉस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर आपके बाजू का आप कोई फाइल डाउनलोड करते हैं, अगर उसमें एक बिट भी करप्टेड है तो द होल फाइल डजंट ओपन। बाजू का आप पीडीएफ ओपन करते हैं, डाउनलोड हो जाता है, क्लिक करते हैं, कहते हैं जिसमें एरर है, इसका मतलब कोई ना कोई पैकेट, कोई ना कोई बिट करप्टेड है। बताऊंगा पैकेट किसे कहते हैं। इसी, लेकिन इसके मुकाबले में अगर आप वॉइस की मिसाल लें, यहां पे आपको वेरिएंस इन डिले में तब्दीली बर्दाश्त नहीं, ये आपको लिए कभी भी अच्छा नहीं होगा। कभी मेरी आवाज तेज जाए, कभी रुक जाए, कभी कट के जाए, नो, यू आर नॉट हैप्पी विद दिस। लेकिन कुछ पैकेट लॉस हो जाते हैं, नो बिग डील। तो इसका मतलब है कि वीडियो की अपनी डिमांड है, डेटा की अपनी डिमांड है, ऑडियो की अपनी डिमांड है, वीडियो की अपनी डिमांड है, लेकिन और ये सारी डिमांड्स हम एक ही नेटवर्क गरीब से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सबकी रिक्वायरमेंट पूरी करेगा। इस मुश्किल काम के लिए जेंटलमैन, ये मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा कि ये एक, हमने नॉर्मल भी, जैसे मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा कि व्हेन वी टॉक अबाउट द योर इंजीनियरिंग, नॉट एन इजी टास्क। आप कहेंगे ये तो बड़ा आसान है जी, बड़े आराम से हम जीपीए बना ले रहे हैं। क्या ये सोचें आप इंजीनियर भी बन रहे हैं? ये सोचें, क्या आप इंजीनियर भी बन रहे हैं? क्योंकि इंजीनियर का तो मकसद है एक ऐसा शख्स जिसको कोई भी प्रॉब्लम दे दिया जाए, वो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आ जाए, कोई इनोवेटिव आइडिया लेकर आ जाए, किसी इनोवेटिव आइडिया को इंप्लीमेंट करके आ जाए, वो इंजीनियर है। ठीक है, अगर आप मेरी इस बात से इत्तेफाक करते हैं तो आपको ये टास्क दे दिया गया है कि जी आपने वहां का कंप्यूटर नेटवर्क, आपका इंटरनेट, इस नेटवर्क ने इन सब को लेकर जाना है, इन सब की ख्वाहिशात को पूरा करना है। इट इज हेल ऑफ टास्क। इसी तरह हमने आपकी इंजीनियरिंग डिग्री को देख लें, योर इंजीनियरिंग डिग्री इज नॉट अ सिंपल टास्क। what we did, we divided your whole 4-year work into 8 semesters, छोटे हिस्सों में तोड़ दिया। then each semester में we introduced maybe 4 or 5 courses with further small modules. It means a big engineering degree into 8 semesters, each semester with 5 courses, and they need to be in a specific order. मतलब ये नहीं हो सकता, आप ये भी सोच रहे होंगे कि भाई why you taught us network course not in the first semester, because
there was some prerequisite required. Like I explained to you yesterday, before this coming to this class, we have already studied signal and system. You have talked about the communication system. You have talked about the probability and so on. So in many courses have been taught to you in the first 5 semesters, and then you are capable to be given this course in semester number 6. Semester number 6. So gentlemen, what we have done here, we have divided our whole this communication process into 5 different layers. 5 different layers, 5 different functions you may call. And we have named these layers as these functions, given some name, like application layer, like transport layer, like network or internet layer, like data link layer, like physical layer. And in this course, we'll be revolving around all of these 5 layers: application layers, transport layer, network layer. So on each layer, there will be specific functionalities which need to be implemented. And these functionalities are implemented by protocols. These functionalities are implemented by the protocols. So what are protocols? These are the G. सर ये OSI मॉडल है या TCP IP मॉडल कौन सा वाला है? 5 लेयर जब बात की जाए तो ये TCP मॉडल है. अगर 7 लेयर्स में बात करता, आपको नजर आ रहा है, दिस इज लेयर नंबर 1 2 3. Okay, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, and this is 5. So whenever we show by 5 layers, it is always TCP layer, TCP model, TCP IP suite. And when I show by 7 layers, then it will be called as the OZ model. Make sense? But may I tell you, क्योंकि आपने क्वेश्चन कर लिया, we will be following mostly the TCP IP model. Why? Because it is implemented everywhere and this is implemented nowhere. तो लाजमी तौर पे हमने वो चीज पढ़नी चाहिए जो कि सारी दुनिया में इस्तेमाल हो रही है. इंटरनेट पूरा का पूरा इस पे चल रहा है. Nice. Let's continue. May I continue? Does it make sense? Yes, sir. Okay. So gentlemen, your data communication is about the signals transmission. As I showed in the number 1, that your signal is starting from your transmitter and this signal is moving on this transmission system. So when we talk about the movement of the signal on a transmission system, on a channel, for example, we are dealing with the data communication. Now, this transmission system consists of different nodes interconnected with one another. Like, for example, my computer, my laptop connected to the DSL modem. The DSL modem is connected through a some part copper, some part optical, up to the PTCL. PTCL, we will show you that on the PTCL, I land on a device which is called DSLAM. From the DSLAM, I connect to the router, PTCL router, and then through the multiple routers, switches, firewalls, and others, I reach to my destination. So this whole is called a network. This whole is called a network. And all of these devices talk to one another using some specific rules. And these rules are called the protocols. So that's the reason, gentlemen, I normally say that my course is about data communications, networking, and protocols. I hope you understood the difference between the 3 terms. Protocols, rules. How one layer will communicate with one another layer. How one device will talk to another device. So there is a rule. Like, for example, now in the class, there is a rule. Mostly I am talking, mostly you are listening. Whenever you have to talk, you raise your hand. Whenever I see a hand is there, I allow, for example. So this is all some rules. Again, there is a rule that mostly I will be talking in English or in Urdu. I will be not talking in Portuguese. I will be not talking in French, German, blah, blah. So this is a rule.
for running this class successfully. So this is a protocol, how we are connected with one another, how the devices are connected with one another, networking, how the signal is transmitting on the network, data communication. So that's the reason we have the data communication deal with the transmission of signals. And yesterday I told you what is a signal. It is the electromagnetic representation of your information, right? This information may be your voice, it may be your data, it may be your audio, voice, blah, blah. So in a reliable and efficient manner. Topics covered is signal generation. Like my transmitter generated the signal. It took my voice. Like for example, you can see here that I have a mic. So my voice is going to the mic. And this mic, the job of this mic is to convert my voice into a electromagnetic signal. Which means it is generating a signal, in other words. Then the signal is going through this wire to my laptop. Then my laptop transmitted in through the Wi-Fi card. Probably you know about the Wi-Fi card. Maybe it is just a PCI card whose job is to take my voice, my video, everything and transmit it in the air on a certain frequency. On a certain frequency, maybe 5 gigahertz, 5 or maybe 2.4 gigahertz. We will be talking about that. So signal generation, transmission, and then the transmission media. So my laptop is connected to the Wi-Fi, to the DSL modem through a air. But it is not must that it should be air always. It can be a wired connection. It may be a coaxial cable. It may be a UTP cable, unshielded twisted pair copper cable. It may be an optical cable. And these cables may be aerial. हवा में भी हो सकती हैं, जमीन में बरी भी हो सकती हैं, दरिया के अंदर भी हो सकती हैं, समंदर के नीचे भी हो सकती हैं. बात समझ आ रही है ना? And we'll be talking about that we need to do signal encoding. For example, source encoding, channel encoding. Again, one device need to be connected to another through certain interface. Maybe we have to combine different signals, multiplexing, like my voice, my video, two different signals, my data, another signal need to be mixed together, multiplexing. So when we were talking about these terms, with these things, gentlemen, what we are studying? Data communication. What we are studying? Data communication. Then the devices need to be interconnected, maybe through a local area network. In a local area network, which means very close to one another, maybe in a home, like small office, home office, you may have heard. Small office, home office. It may be your home, it may be your lab, classroom, or it may be within a city, within a campus, within the world. So this is called, from the very small, I may call like a broad area network. The bigger, I may say, sometimes you people use your mobiles especially, or even your laptops, for example, and you shift some data from one computer to another by using the Bluetooth. And this is called a personal area network, which is called as the PAN. So that's the reason these networks can be of different sizes, starting from, gentlemen, starting from the body area network, BAN, to personal area network within a few meters. Like I give you the example of your Bluetooth or a Zigbee. Then the campus area network, maybe in the whole campus of your university of Peshawar. And then is the metropolitan area network within the city. Then is the wide area network. So there are different, mostly on the size of the network and the technology which we used. Okay. Excuse me, sir. Sure. सर ये बैन की कोई एग्जांपल बताएं. बिल्कुल, no problem, gentlemen. If this is your body, let me give you an example. If this is your body,
if this is, चले हम रफ था, and you have multiple sensors connected to here, might be this sensor is measuring your body temperature, this is measuring your heartbeat, this is measuring your, let it be blood sugar, this is measuring some other quantity and giving it to a controller, so that this controller is then connected to the hospital or to with the doctor. So all of these values tagged with the time are received by the doctor. So this becomes an example of a body area network. Does it make sense? Yes, sir. Thank you, sir. Sure. Okay. Now this whole something which, may I say, gentlemen, technological advancements कैसे हुई? Because of number one, advances in the technology. कल आपके कंप्यूटर में, मिसाल के तौर पे मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूं कि the first computer which I bought, I remember कि उसमें 2 GB की रैम थी, उसकी 2 MB, 128 MB की, either it was 64 MB or 128 MB, I don't remember exactly. 2 GB की हार्ड डिस्क थी और उसका प्रोसेसर 200 मेगा हर्ट्ज का था, बल्कि 200 मेगा हर्ट्ज का भी नहीं था, 166 मेगा हर्ट्ज का था एग्जैक्टली. That is something about 2000. Within this 21 years approximately, क्या आप आज ऐसी मोबाइल भी खरीदना चाहेंगे जिसके अंदर 64 MB की रैम हो, 2 GB की हार्ड ड्राइव हो और 166 MB का प्रोसेसर हो? आज तो आप क्वाड कोर, नो सर. वेरी राइटली आंसर्ड बाय हुज़ैफा जावेद. नो सर. सिंपल आंसर. आज आप चाहते हैं कि आपकी मशीन के जो वो हैं वो क्या होने चाहिए, वो शायद कुछ इस तरह के होने चाहिए, बल्कि यहां देखने की बजाय, चलिए यहां से भी हम देख सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि उसकी मेमोरी कितनी है, 20 GB. उसकी हार्ड ड्राइव कितनी है, माइट बी टेराबाइट्स. उसका इथरनेट कितना है, उसका और चीजें कितनी है. यू कैन सी दैट दे आर ह्यूज. और अगर मैं आपको इससे सिस्टम इन्फो में चला जाऊं, इसलिए हम कहते हैं कि ये कोर्स जो है सारा का सारा प्रैक्टिकल है, क्योंकि आप चीजों को देख रहे हैं, हम कोई गपशप नहीं लगा रहे. तो यू कैन सी दैट इट हैज a Windows 10 Pro. The version is this. If I can show you the processor is CPU 1.6 gigahertz, 18 megahertz, 4 cores, 8 logical processors, something good. Then the further GBs memory, 20 GB memory, and the total physical is 19.9, available is 11, total virtual memory is 22.9, and which means you can see, gentlemen, and there are multiple hypervisors as well. So you can see here that things have changed a lot. Things have changed a lot. जब ये पहला कंप्यूटर था तो the window was Windows 95. Now there is no Windows 95. आप कहीं से भी उसको नहीं ढूंढ के ला सकते. तो इस चीज से हमें ये पता चला, जेंटलमैन, कि द टेक्नोलॉजी हाइपरवाइजर क्या है. राइट जी, हुज़ैफा जावेद. जेंटलमैन, मेरा एक लैपटॉप आपको, जिसकी स्क्रीन इस वक्त आपको नजर आ रही है, इसके अंदर कितनी मशीनें चल रही होंगी आपके ख्याल से, हुज़ैफा? मशीन्स, यानी कि जैसे आपकी लैब में, आप जब अपने लैब में एंटर होते हैं तो आपको वहां पे मुख्तलिफ मशीनें नजर आती हैं, यानी कंप्यूटर्स नजर आते हैं. तो मैं ये पूछ रहा हूं हुज़ैफा कि मेरे कंप्यूटर के अंदर कितने कंप्यूटर चल रहे होंगे? मैं कह सकता हूं कि हुज़ैफा के कंप्यूटर में एक कंप्यूटर चल रहा है, ठीक है. लेकिन मैं अपना कंप्यूटर अगर आपके सामने लेकर आऊं, तो हम अभी लेकर आता हूं ताकि आपको अच्छा लगे. वो एक, मैं पहले इसमें जाता हूं, VMware वर्कस्टेशन प्रो. ये एक हाइपरवाइजर है. ओके, अब आप देखें तो इसके अंदर
दो मशीनें चल रही हैं। ये एक मशीन यूबंटू है और एक मशीन ईव कॉम वीएम है। अगर मैं चाहूं तो इसको स्टार्ट कर सकता हूं। तो दो मशीनें ये हो गई। देखिए ये यूबंटू की मशीन है, अभी ये यूबंटू देखें, यूबंटू आ गया। अगर मैं इसको अभी स्टार्ट कर दूं तो विंडो के साथ साथ यूबंटू भी चलना शुरू हो जाएगा। अगर मैं इसको क्लिक कर दूं तो यूबंटू के इसके साथ यूबंटू भी चलेगा, ईव कॉम भी चलेगा, विंडो 10 भी चलेगा। और अगर मैं इसको इसमें खुश नहीं हूं जेंटलमैन, और मैं दूसरा हाइपरवाइजर स्टार्ट करता हूं जिसका नाम है ओरेकल वीएम वर्चुअल बॉक्स, तो इसके अंदर माशाल्लाह आई हैव द यूबंटू, आई हैव डेवएस, काली, मेटाएक्सप्लॉइटेबल, साइबर ऑप्स, साइबर ऑप्स सिक्योरिटी ओनियन, 1 2 3 4 5 6 ये मशीन है। दो मशीनें उसमें थी, 8 और एक विंडो 10, 9 मशीन इसके अंदर चल रही हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ द हाइपरवाइजर। You got the answer, Huzaifa Javed? Nice. Yes, sir. Clear. Nice. तो हम इसको बंद कर देते हैं फॉर अ टाइम बीइंग, क्योंकि इसकी हमें जरूरत नहीं है। तो व्हाट इज द टेक्नोलॉजी, एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी, यानी कि अगर ये 10 की 10 मशीन मैं इसमें चलाना चाहूं तो क्या होगा। हर मशीन यानी इस तरह लगेगा कि हम एक स्विच के साथ 10 मशीन लगी हुई हैं। एंड 10 मशीन, अगर एक मशीन इतनी ट्रैफिक जनरेट कर रही है, एक मशीन अगर इतनी ट्रैफिक जनरेट कर रही है, जो कि अभी आपने देखा है अराउंड 1 मेगाबिट पर सेकंड जनरेट कर रही थी, तो 10 मशीन अगर करेंगी तो कितना होगा, अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम मोर, अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम्स मोर, अराउंड 840 मेगा किलोबिट पर सेकंड। तो कहने का मकसद ये है कि इसकी वजह से, एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी की वजह से ट्रैफिक ग्रोथ हुई। मैं ये 10 की 10 मशीनें एक ही मशीन के अंदर चला के नेटवर्क को ट्रैफिक देख सकता हूं। नेटवर्क ये समझे कि 10 मशीनें मेरे साथ लगी हुई हैं। ट्रैफिक ग्रोथ एट ए हाई एंड स्टडी रेट। और इसके अलावा लोगों का ट्रेंड जो है वो नई नई सर्विसेज आ गई हैं। अब आप क्या 20 साल पहले, 25 साल पहले यूट्यूब था, फेसबुक था, व्हाट्सएप था, टेलीग्राम था, मतलब इवन अगर आप, मैं अपना कंप्यूटर आपके सामने रख दूं, मोहम्मद हुजैफा जावेद, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? No, sir. गलती से माइक ऑन। ओके, माइक ऑफ रखा करें। ओके, तो कामरान, यू रेज्ड हैंड। यस सर। जी, एनी क्वेश्चन? सर मतलब आपने कहा कि मल्टीपल हमारे पास मशीन होने चाहिए ना ट्रैफिक फ्लो ज्यादा करने के लिए, तो मतलब हम मल्टीपल टैब्स ओपन करते हैं, मतलब एक ही मशीन से, तो उससे भी ट्रैफिक फ्लो ज्यादा होंगे ना? कि हमने क्रोम में मल्टीपल टैब्स ओपन किए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप यहाँ भी देख सकते हैं कि एक टैब के अंदर गूगल ये चल रहा है, दूसरे के अंदर ये चल रहा है, तीसरे के अंदर ये चल रहा है, चौथे के अंदर ये चल रहा है, पांचवें के अंदर ये चल रहा है, लेकिन ये एक ही मशीन के अंदर है। मल्टीपल प्रोसेसेस इन अ सिंगल मशीन, एंड देन आई कैन हैव 9 10 व्हाटएवर मशीन्स आई वांट। आई कैन हैव सो मेनी मशीन्स and everyone will have number of when you talk about these tabs, gentlemen, this is just a web browser, but a single machine can have multiple servers. Like for example, इसी मशीन के अंदर मैं वेब सर्वर भी इंस्टॉल कर सकता हूं, मैं इसी के अंदर ईमेल सर्वर भी इंस्टॉल कर सकता हूं, मैं इसी के अंदर फाइल सर्वर भी इंस्टॉल कर सकता हूं, मैं इसी के अंदर डीएनएस सर्वर भी इंस्टॉल कर सकता हूं, मैं इसी के अंदर डीएचसीपी सर्वर भी इंस्टॉल कर सकता हूं। बला के ट्रैफिक जनरेट कर रहा हूं जी। तो दिस इज समथिंग अबाउट द थिंग कि आप कहां बता मैं ये रहा था जेंटलमैन कि अगर आप मेरे इसको देखें तो आपको नजर आ रहा होगा कि कितनी मैं कम्युनिकेशन कर रहा हूं। टेलीग्राम, हैव यू हर्ड द नेम ऑफ टेलीग्राम? Yes, sir. Yes. What is this Telegram? What is this Telegram? So messaging app है sir. बिल्कुल, it is like your Google Meet. It is just like your Google Meet. अब देखिए टेलीग्राम इज देयर। इसी तरह आपको वेबएक्स भी यहाँ पे कहीं नजर आएगा। ये जी वेबएक्स आपको नजर आना चाहिए। वेबएक्स नजर आ रहा है? Yes, sir.
वेबएक्स नजर आ रहा है आपको। वेबएक्स में भी दो चीजें नजर आएंगी, एक वेबएक्स टीम और एक वेबएक्स, दो वेबएक्स होने चाहिए। एक ही आपको नजर आ रहा है विच इज वेबएक्स मीटिंग, सिस्को वेबएक्स मीटिंग, और ये वेबएक्स टीम। तो दो ये वेबएक्स नजर आ रहे हैं, आपको टेलीग्राम नजर आ रहा है, आपको व्हाट्सएप नजर आ रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी ज्यादा कम्युनिकेशन के मेरे पास। इसके अलावा एक और भी नजर आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट टीम, माइक्रोसॉफ्ट टीम। तो टीम, टेलीग्राम, वेबएक्स टीम, वेबएक्स मीटिंग, गूगल मीट, व्हाट्सएप। what is this? What the hell is this? Development of new services. So when I run these multiple new services, and these multiple services generate too much traffic. जैसे अभी आपने देखा कि too much traffic is generated in my computer. मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे जाऊं तो देखिए अभी आपने देखा कि अराउंड 1.1 मेगा के करीब मैं चला गया। अगर आप इसको फर्दर जाके सीपीयू के पॉइंट ऑफ व्यू से जाके देखें तो आप देखेंगे कि गूगल क्रोम तकरीबन 44% ऑफ द प्रोसेसर खा रहा है, 11% ऑफ द सीपीयू खा रहा है, 44% ऑफ द मेमोरी खा रहा है, 12.4% मेमोरी। और ये 12.4% किसका है? 20 GB का है, क्योंकि मेरी मेमोरी 20 GB है, रैम मेरे पास 20 GB की लगी हुई है। तो ये कहने का मकसद है जेंटलमैन कि आपका हार्डवेयर इंप्रूव हो गया है। हार्डवेयर इंप्रूव होने से नई एप्लीकेशंस जनरेट हुई, और ये सब के सब किस चीज पे पहुंच रही हैं? ट्रैफिक ग्रोथ में। So traffic growth because of new services and because of the technology advancements. I hope you agree with me. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Nice. और ये ग्राफ भी आपको यही बता रहा है, although कि ये अब तकरीबन थोड़ा पुराना हो गया, लेकिन स्टिल आप इसको देख सकते हैं कि ट्रैफिक किस अंदाज से बढ़ रही है। approximately 2001 में it is only about the mobile traffic. It is only about the mobile traffic. कि मोबाइल, इसके अलावा वायर ट्रैफिक अलग है हमारी, आपको पता है। तो देखिए approximately 0.1 से 0.2 डबल इन a single year, 3 times increase. 0.2 अब तो 0.2 से 0.6 लग रहा है, नजर आ रहा है, लेकिन मैंने साथ क्या लिखा है? हेक्साबाइट्स। और हेक्सा किसको रिप्रेजेंट करता है जेंटलमैन? 10⁻18 को, बिग नंबर। So a big jump, 1.6 से 1.2, 1.2 से 2.2 hexabytes, 2.2 से 3.6. So you can see that this traffic is increasing at a very fast pace. At a very fast pace. Then you can see gentlemen here as well कि अगर आप मुख्तलिफ एप्लीकेशंस को देखें, क्योंकि अभी हमने बात की कि सर्विसेज, एप्लीकेशंस, हमने उनकी बात की। तो अगर हम उनकी बात कर रहे हैं जेंटलमैन, एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं, तो यू कैन सी हियर दैट आई हैव शोन इन जस्ट आई हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ 2 years, 2010 and 11 जनवरी। तो आप देख सकते हैं कि योर ग्रे पार्ट हैज इंक्रीज्ड अ लॉट। इट वाज अराउंड 20 kilobit per second per सब्सक्राइबर, एक बंदा। और टोटल बंदे कितने हैं? 7.1 बिलियन। और डिवाइसेस कितने हैं? 20 बिलियन। तो कहने का मकसद है जेंटलमैन कि इट वाज अराउंड 20 से इट हैज गॉन टू अराउंड 80, 4 टाइम इंक्रीज, ह्यूज इंक्रीज। यू कैन, एंड व्हाट टाइप ऑफ ट्रैफिक दिस ग्रे वन इज रिप्रेजेंटिंग? स्ट्रीमिंग मीडिया। इससे पता चलता है कि लोगों में स्ट्रीमिंग मीडिया का, मिसाल तो पे अब आप किसी के साथ व्हाट्सएप पे जाते हैं तो साथ ही वो आपको कहता है वीडियो ऑन का। जो ही आप किसी के साथ गूगल मीट पे जाते हैं वो आपको कहते हैं, गूगल मीट पे जाते हैं, टेलीग्राम पे जाते हैं, वेबएक्स पे जाते हैं, किसी में भी जाते हैं तो आपको कहता है वीडियो ऑन का। इसका मतलब कि स्ट्रीमिंग मीडिया, वीडियो। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये ट्रैफिक आपकी जो ग्रीन कलर की है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग पीयर टू पीयर एप्लीकेशंस लाइक योर स्काइपी, लाइक योर BitTorrents, like your Kazaa. All of these applications are using a peer-to-peer applications. Then web browsing, and then other protocols. So you can see, gentlemen, that
the trend is increasing. So what we should do for this? How we can grab this, being an engineer? Definitely, we need to maximize our capacity. We need to maximize our capacity. Sorry. We need to maximize our capacity. जहां पे 20 था वहां 80 हो गया है, और 80 भी किलो में है, और किलो भी एक पर यूजर सब्सक्राइबर की बात कर रहा हूं, तो सब्सक्राइबर कितने हैं? बिलियंस में है. तो you can see that you need to increase this capacity of your network, and you need to minimize the transmission cost. क्योंकि जिस तरह से ये बढ़ रहा है, मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको अपना बिल दिखा सकूं probably, तो that will be even more nice. Okay, PTCL bill. चलिए देखते हैं क्या निकल आए, तो that will be nice. D-bill landline, and I show you 258. No, wrong. Search, and what I want to show is how much I'm using. How much I'm using. How many GBs? Oh, yes. Look at here, gentlemen. 253.82 gigabytes in a single month. Divide by 30 कर लें, per day नजर आ जाएगा, तो 253 divided by 30, 8.4. so it comes to be 8.4 gigabytes every day. 8.4 gigabytes every day. क्योंकि अगर इसको आप 30 से वापस मल्टीप्लाई करें तो you should get 250 approximately. Yes, so it is 8.4 gigabytes. ये चीज आपको बताना का मकसद है कि अगर इतना ज्यादा ये होता, और इस 253 गीगाबाइट के पैसे कितने गवर्नमेंट मुझसे ले रही है? 1910. although कि ओवरऑल बिल इज अराउंड 250 रुपया, लेकिन इसके वो सिर्फ 1900 रुपए इस बैंडविड्थ के मुझसे ले रही है, इस गीगाबाइट्स के मुझसे ले रही है. तो इस सब का कहने का मकसद ये है जेंटलमैन कि आपको ये चीजें सस्ती करनी पड़ेंगी, तब जाके लोग गीगाबाइट्स में इस्तेमाल करेंगे. अगर ये 1 गीगाबाइट अगर लेट करें 1000 रुपए का भी होता, तो और मैंने 253 गीगा किया होता, तो मेरी तो सारी तनख्वाह उधर चली जाती. तो इसलिए मैं कहता हूं हर चीज महंगी हुई लेकिन कम्युनिकेशन सस्ती हुई. मेक सेंस? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So now we can say that what are the notable trends? The notable trends are faster and cheaper. आपके networks, आपके computers, faster. जैसे मैंने पहले बताया कि the first computer I bought, the processor was only 166 mega, one single processor. The memory was 166. उसकी sorry processor speed. The RAM was 64 or 128, and the hard drive was only 2 GB. And it was not simple. It was not something cheap. But now we have, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि my laptop, too many good, it is faster, it is having more capacity, more RAM, the उस वक्त जो हम ट्रांसमिट हम नेटवर्क से कनेक्ट होते थे तो इस तरह का नेटवर्क नहीं होता था कि 100 मेगा. अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मैं दोबारा ऑल्ट कंट्रोल डेल करूं और ये बता रहा है आपको कि जी आप इसकी अगर इथरनेट ये देखना चाहें तो इट इज अराउंड ये 802.11n,
it provide me around 300 megabit per second approximately. तो gentlemen यहाँ पे, लेकिन उस वक्त तो 56K का मॉडेम होता था, 56K किलो। अब 56K अभी भी मिशन है, कहीं 56K कहीं यहाँ जमीन के पास पड़ा होगा। तो things have the notable trend is that we are moving toward faster and cheaper in both computing and communication. The internet, the web and the associated applications are emerged. अभी मैंने आपको बताया कितनी मेरे डेस्कटॉप के ऊपर एप्लीकेशंस हैं जो कि नहीं है, which are used by both by the business and personal network landscape. इसके अलावा नेटवर्क हैव बिकम मोर इंटेलिजेंट। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर मैं इसमें चला जाऊं तो नेटवर्क इंटेलिजेंट है कि वॉइस को किस तरह ट्रीट करना है, डेटा को कैसे ट्रीट करना है, ऑडियो को कैसे करना है, वीडियो को कैसे करना है, ज्यादा पेइंग कस्टमर को कैसे करना है, कम पेइंग कस्टमर को कैसे करना है। ऑल नेटवर्क हैज बिकम इंटेलिजेंट एंड दैट इज कॉल्ड क्वालिटी ऑफ सर्विस। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट नाउ is the mobility. You want that you should carry your device with you and you are connected, which is called ubiquitous communication. बात समझ आ गई? तो जेंटलमैन यहां से हमें ये बात समझ आती है कि हमारा नेटवर्क में ट्रेंड किस तरफ है। Do you have any question, gentlemen? Anything No. which is not No, understood? sir. Okay, Faisal. Okay, Muzammil. Anyone else? Okay, Huzafa Javed, Zain Fayaz, Zaidullah. तो चलें, अगर आपको कोई अरूज, अर्जू, मोहम्मद ज़ुहैब, थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर योर फीडबैक। सर ये वैसे जनरल क्वेश्चन कर सकता हूँ? श्योर श्योर श्योर, क्वेश्चन पे कोई नहीं जी, कोई तकलीफ नहीं है। सर ज्यादा से ज्यादा होगा मैं कहूंगा मुझे नहीं आता। सर ये यूडीपी और टीसीपी में यही फर्क है ना कि मतलब अगर वो प्रायोरिटी की बेस पे हम उसे देख रहे हैं, मतलब अगर मैसेज में अगर डिले भी आ जाए तो कोई मसला नहीं है, वीडियो या ऑडियो में डिले नहीं आना चाहिए, तो इसलिए हम उधर टीसीपी। वीडियो और ऑडियो में डिले आ सकता है लेकिन एक खास हद तक। टीसीपी और यूडीपी जब मैं आपको ये चीज पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको इस लेयर के ऊपर बात करूंगा, यहाँ पे ये आपका टीसीपी यूडीपी पढ़ा हुआ है, डिटेल में समझाऊंगा जी। थैंक यू सर। जी, any other question? So gentlemen, if you have LAN और MAN में difference, जी, with the question is from Bilal Ahmed. Gentlemen, जैसे मैंने आपको बताया कि LAN और MAN में फर्क, पहले उसका नाम से वो कर दूं। ओके, मैं यहाँ पे LAN कहा गया, LAN का चलें यहाँ पे, अगर नहीं मानता नहीं आओ, PAN के बाद आपका यहाँ पे LAN आता है, LAN। लैन का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का मतलब ये होता है कि वो फैसिलिटी जो कि आपके पूरे शहर के लिए हो, उस नेटवर्क को हम कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जैसे एक वक्त में वतीन जो कि कंपनी है पाकिस्तान में, इसने एक टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की थी पाकिस्तान में, वतीन ने, जिसका नाम था वाईमैक्स, जिसका नाम था वाईमैक्स। इस तरह पीटीसीएल ने एक नेटवर्क दिया था जो कि शहर के अंदर आपको कम्युनिकेट करने की इजाजत देता था। तो दैट वाज कॉल्ड एज दी वाईनेट सर। नहीं, वाईनेट नहीं था, इट वाज यूजिंग ईवो, बट टेक्नोलॉजी को नाम इन्होंने कोई दिया हुआ था। तो दैट वाज द एग्जांपल ऑफ दी मैन। जबकि लैन क्या है? दिस इज द वेरी स्मॉल नेटवर्क विच इज इन योर होम फॉर एग्जांपल, which is in your office for example, or which is in your lab for example, or in classroom for example. So that becomes a local air network. इस वक्त तो अगर आप घर पे हैं और घर का आपका जो नेटवर्क है, that is called a LAN. जी, any other question? जी बिलाल, I responded to your question, which is LAN or MAN में difference. Yes sir, समझ आ गया सर। Nice. So if you don't have any question, I will say Allah Hafiz to you and see you inshallah probably on Wednesday. Yes. Ji.
सर ये वो एक जनरल क्वेश्चन सर, ये ओसाई का आपने कहा था कि ओसाई मॉडल का यूज नहीं होता, तो एक ये इसके वजह से एक और भी इफेक्ट ये था कि हाइपोथेटिकल एक वो है अप्रोच है, तो इसका यूज क्या है सर इस चीज का, ये मॉडल का? Okay, अगर the question, okay, TCP/IP question मॉडल है is, okay, the question is that जब हम कहते हैं कि एक रेफरेंस मॉडल है, वो उसी मॉडल इज ए रेफरेंस मॉडल, क्यों फिर इसको बना वो किया गया? इसलिए किया गया कि आपको एक रेफरेंस पहले बना आपके लिए होना चाहिए, और फिर आप उस रेफरेंस में लाजमी तौर पे, क्योंकि उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई होती, वो सिर्फ एक ब्लैक एंड व्हाइट में, यानी कि लिखा हुआ एक रूल्स होते हैं, आपको एक ऐसी चीज चाहिए जो प्रैक्टिकली वायबल हो। तो प्रैक्टिकल वायबल जिसका इसका जो वो आप कह सकते हैं, दैट इज द टीसीपी/आईपी मॉडल, जो कि मैंने आपके सामने यहाँ पे बनाने की कोशिश भी की। सिर्फ फर्क इन दोनों में ये है कि इस मॉडल को पहले कागज पे बना लिया गया और फिर कहा गया कि इसको इंप्लीमेंट करो, एंड दैट वाज टू डिफिकल्ट। इस मेथड को टीसीपी मॉडल में ये था कि पहले इसको इंप्लीमेंट किया गया, जब इंप्लीमेंट होगा तो उसको डॉक्यूमेंट कर दिया गया और वो इजी हो गया। तो दैट वाज द डिफरेंस बिटवीन द टू मॉडल्स। जी, एनी अदर क्वेश्चन? इजाज? नो सर, थैंक यू। ओके जी, मोहम्मद हसन आप कुछ बोल रहे थे, लेकिन इजाज के साथ आपकी आवाज कट गई थी। सर मैं कह रहा था कि हर यूजर के लिए कैंपस एरिया नेटवर्क जरूरी है, या फिर जो सिर्फ मतलब किसी कंपनीज के अंदर काम कर रहे हैं नहीं, मतलब डिपेंड करता है कि मिसाल के तौर पे अगर आप देखें तो आपकी यूनिवर्सिटी में आप एक नेटवर्क आया है जिसका नाम है इडियोरोम। अब ये इडियोरोम जो है, बेसिक ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि पूरे के पूरे कैंपस में आप घूमें और आप कनेक्टेड रहें। मिसाल के तौर पे आप यूटी में घूम रहे हैं, आप शाह यूनिवर्सिटी में घूम रहे हैं, आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में घूम रहे हैं, आप इस्लामिया कॉलेज में घूम रहे हैं, यू आर कनेक्टेड। तो दैट बिकम एन एग्जांपल ऑफ ए कैंपस एरिया नेटवर्क। सही है सर। Okay ji. So gentlemen, thank you very much for your time, hoping that you will take some time and you will read this these slides, and if you have any question you may ask me by email, or you may wait for the coming Wednesday. So Allah Hafiz. And sir जी, ज़ियादुल सर नेक्स्ट क्लास थर्सडे को है सर, जिस दिन पे भी है, जो भी आपका स्केड्यूल है। मेरी स्केड्यूल जो है सर वो सेशन भी है मेरे ख्याल में, वो सिस्को नहीं, वो सेशन नहीं होगा, वो नहीं होगा, क्लास होगी। ठीक है सर, ठीक है सर। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर। ओके सर, अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम।